Assalamu alaikum. Beta, in this video lecture I will deliver another chapter of the ENT series of lectures, and from the larynx and trachea it is the paralysis of the vocal cords, right? Before I tell you take you into the details of this chapter, let me tell you beta that the larynx के अंदर मौजूद होते हैं vocal cords obviously, and जो larynx का nerve supply होता है वो थोड़ा आप सुन लें। एक्चुअली वेगस नर्व होती है जो लैरिंग्स को सप्लाई करती है। वेगस नर्व की दो ब्रांचेस होती हैं, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, एक्सटर्नल ब्रांच और एक होती है इंटरनल ब्रांच। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। सो नाउ ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं, कैसे सप्लाई करती हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले मोटर सप्लाई बताता हूँ, फिर सेंसरी सप्लाई। फॉर मोटर सप्लाई बेटा, all the intrinsic laryngeal muscles except the cricothyroid muscle are supplied by the recurrent laryngeal nerve, right? क्या कहा मैंने? ये जो recurrent laryngeal nerve है ना, ये सारे के सारे intrinsic laryngeal muscles को सप्लाई करती है, except the cricothyroid muscle, and the cricothyroid muscle is supplied by the external branch of the superior laryngeal nerve। ये सप्लाई करता है क्रिकोथायरॉयड मसल को। ठीक है, ये हो गई बात। क्रिकोथायरॉयड मसल एक मेनली इसका काम होता है वोकल कॉर्ड को टेंस करके रखना और वोकल कॉर्ड को एडक्ट करके रखना, अंदर की तरफ करके रखना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई आपको? वेगस नर्व की दो ब्रांचेस, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व के दो कंपोनेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट, एंड द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज द सेम। It supplies all the intrinsic laryngeal muscles except the cricothyroid muscle, which is supplied by the external branch of the superior laryngeal nerve. And this cricothyroid muscle is the muscle which keeps your vocal cord tense and responsible for adduction of the vocal cords, right? Okay. And what about the sensory supply to the mucous membrane of larynx? This is, by the way, the motor supply, right? This is the motor supply. For sensory supply, what we do is, look, if this is the larynx, then what happens, and this, let's suppose this is the region of the vocal cords, that is the glottis. The sensory supply to the mucous membrane above the vocal cords, यानी कि this portion, इसका जो सेंसरी सप्लाई है, इट कम्स फ्रॉम द इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ठीक है, इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। एंड सेंसरी सप्लाई बिलो द वोकल कॉर्ड, यानी कि दिस रीजन इज बाय द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है बच्चों, एक क्विक रिकैप। मोटर सप्लाई की बात करें तो ऑल द इंट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉयड इज सप्लाइड बाय द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। However, the cricothyroid muscle, which is also intrinsic laryngeal muscle, it is supplied by the external branch of the superior laryngeal nerve. However, this is the muscle which is responsible for keeping the vocal cords tense and adducted. For sensory supply, above the vocal cord, it is supplied by the internal branch of the superior laryngeal nerve, and below the vocal cord, it is supplied by the recurrent laryngeal nerve. ठीक है बच्चों, ओके जी, ये तो नर्व सप्लाई समझ आ गया। अब चलते हैं, अगर ज़ाहिर सी बात है इसी में कोई प्रॉब्लम होगा नर्व सप्लाई में, इसको आप अच्छे से अपने जहन में रख लें। अगर इसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो ही बेटा पैरालिसिस होगी ना वोकल कॉर्ड्स की। ठीक है, सो या पैथोलॉजी इन द वोकल कॉर्ड, द पैरालिसिस इन द वोकल कॉर्ड कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं बेटा कुछ इस तरीके से, पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, राइट? So it is like this, the false vocal cords, true vocal cords, right? And one on the right side, one on the left side. So the vocal cord paralysis may be unilateral involving one side का vocal cord, or it can be bilateral involving both the vocal cords. It can be the complete paralysis or can be the incomplete paralysis. ठीक है, the paralysis can be abductor in type or adductor in type. If let's suppose the paralysis in the vocal cords is abductor, so vocal cords will be unable to abduct themselves. अगर ये दो vocal cords है ना, अगर let's suppose ये vocal cord paralysis है और इसमें abductor type की paralysis है, तो ये abduct नहीं कर पाएगा, बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा। और अगर इसमें adductor paralysis है तो ये अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ रहेगा।
अगर एबडक्टर पैरालिसिस है तो बाहर नहीं जा पाएगा, अंदर की तरफ रहेगा, और अगर एडक्टर पैरालिसिस है तो अंदर की तरफ रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों। राइट बेटा, तो अब इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं इसके कॉजेज़ को, कि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं। एज द लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व हैज़ द लॉन्गर कोर्स, इट कैन बी अफेक्टेड बाय द पैथोलॉजी इन द मीडियास्टिनम, राइट, while involvement of the both the sides can occur due to the pathology in the neck। कहने का मकसद ये है कि एक है राइट लेरिंजियल नर्व, एक है लेफ्ट लेरिंजियल नर्व। रिकरेंट की बात हो रही है, राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरीज ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू द राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। वाई? क्योंकि जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है उसका बड़ा कोर्स होता है, वो मीडियास्टिनम में पास करती है और नेक से गुजरती है। सो इस वजह से ज़्यादा बड़ा कोर्स होने की वजह से उसकी पैथोलॉजी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इंजर होती है, डैमेज होती है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस होती है। लेकिन जो राइट लेरिंजियल नर्व होती है उसका शॉर्ट कोर्स होता है, वो गले के अंदर रहती है, नेक के अंदर रहती है, इसलिए उसकी जो पैरालिसिस है वो उसकी इंजरी कम ही होती है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो रही है? मोस्टली कॉज तो बेटा नर्व इंजरी ही होगा। तो नर्व इंजरी क्यों होती है, उसके कॉजेज़ हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलें। राइट बेटा, सो द कॉजेज़ कैन बी नंबर 1, most of the times the cause is any malignant disease in 30% cases. Malignancy of the bronchus, esophagus, thyroid or the nasopharynx, they can compress the nerve supplying to the larynx, leading to the paralysis of the vocal cords. In 25% of the cases the cause is iatrogenic due to the surgical procedure of the thyroid gland, parathyroid gland, surgery of the esophagus, pharynx and the left lung। तो इस वजह से भी जो है आप अपनी नर्व को डैमेज कर देते हो, इंजर कर देते हो, जिसकी वजह से बाद में वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होती है। एक्सटर्नल ट्रॉमा इन 15% केसेस लाइक RTAs, स्पोर्ट्स इंजरीज, स्टेब और गन शॉट इंजरी। 15% केसेस में इट इज़ इडियोपैथिक एंड इन 15% केसेस सम अदर कॉजेज लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मायोपैथी, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ द particularly inflammatory disorders involving the nerve, right? So yeah, now beta I'll take you to the very next page and I'll explain you the paralysis of the vocal cord in a much better way. So before I take you to the paralysis of the vocal cord, you need to understand this picture a little, right? Let me tell you beta that okay, look what happens beta if let's suppose this is your vocal cord, right? This is the vocal cord and it is placed in its normal position. Let's suppose this is a normal vocal cord, right? This is a normal vocal cord placed in its normal position। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है, for the better visibility। ठीक है जी, this is the normal vocal cord। Now the thing is if it gets paralyzed, so इसकी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं, लाइक इट कैन बी यू नो इन द मिड लाइन, उसको मीडियन पोजीशन कहते हैं। इट कैन बी हेयर एट लेवल ए, इट इज़ द पैरामीडियन पोजीशन, or it can go a little away, little more abducted, that is come to the B level, it is the cadaveric position, and can go to the C level, that is the full abduction। अब मुझे एक बात बताएं, अगर वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस होती है, और पैरालिसिस की मैंने 2 टाइप्स बताई थी, एक होती है एबडक्टर टाइप, एक होती है एडक्टर टाइप। अगर एबडक्टर टाइप पैरालिसिस हुई है तो मसल जो वोकल कॉर्ड है वो एबडक्ट नहीं हो पाएगा, एडक्टेड रहेगा अंदर की तरफ, यानी कि पैरामीडियन पे रहेगा या मीडियन पे रहेगा, सही है ना? अगर वोकल कॉर्ड एबडक्ट नहीं कर पा रहा, एबडक्टर पैरालिसिस हुई है, तो क्या होगा, ये मिड लाइन की तरफ रहेगा, पैरामीडियन पे रहेगा। और अगर एडक्टर पैरालिसिस हुई है तो फिर क्या होगा, एडक्टर पैरालिसिस हुई है तो वो एडक्ट नहीं कर पाएगा, वोकल कॉर्ड बाहर रहेगा कैडावरिक पोजीशन में, या फिर फुल एडक्टेड पोजीशन में, फुल एबडक्शन पोजीशन में, क्योंकि वो एडक्ट नहीं कर पा रहा, करीब नहीं आ पा रहा, दूर रहेगा। समझ आया बेटा? तो ये 2 चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब 2 थ्योरीज़ हैं जो कि एक्सप्लेन कर बेटा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर अ लिटिल,
Now you have to study these two theories which describe the position of the vocal cord after paralysis. One is the Siemens law, one is the Wegener-Grassmann theory. Firstly, let me tell you about the Wegener-Grassmann theory. According to Wegener-Grassmann theory, if there is injury in the recurrent laryngeal nerve only, so the cord will lie in the adducted position, right? Paramedian position, that is like A. Why? The question is why. It could go to this way as well. कहने का मकसद ये है बेटा, अकॉर्डिंग टू वेगनर्स ग्रासमैन थ्योरी, अगर इंजरी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व में है ना, तो क्या होगा, वोकल कॉर्ड की पोजीशन क्या होगी, एडक्टेड पोजीशन होगी, सही है, यानी कि पैरामीडियन पोजीशन होगी, ये अंदर की तरफ होगा इस जगह पे, ये ठीक है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी होती है तो सारे इंट्रिंसिक लेरेंजियल मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, सिवाय एक मसल के जिसको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई नहीं करती, वो है क्रिकोथायरॉइड मसल। क्रिकोथायरॉइड मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, वो तो बिल्कुल ठीक है। और जो आपका क्रिकोथायरॉइड मसल है उसका क्या रोल होता है, एडक्शन कराना, वोकल कॉर्ड में टेंशन लेके आना। तो जब आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी हुई तो क्या हुआ, सारे जो इंट्रिंसिक मसल थे वो काम करना छोड़ गए, सिर्फ बच गया क्रिकोथायरॉइड मसल, और वो सही काम करेगा। और उस क्रिकोथायरॉइड मसल के ज़िंदा होने की वजह से आपका जो वोकल कॉर्ड है वो एडक्टेड रहेगा, पैरामीडियन पोजीशन में रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। समझ आई बात? अब इस थ्योरी को पढ़ो तो समझ आएगी बेहतर। According to Wegener-Grassmann theory, it proposes that any lesion affecting on, if there is problem only in the recurrent laryngeal nerve, the cord will lie in the adducted position, paramedian position. Why? Because the cricothyroid muscle is spared, जिसका adductor effect होता है. But if the lesions are affecting both the superior laryngeal and the recurrent laryngeal nerve, then the cord will lie in the cadaveric position. अगर superior laryngeal nerve पे गई और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी गई तो ना आपका वोकल कॉर्ड पैरामीडियन पोजीशन में होगा, ना बहुत ज़्यादा एब्डक्टेड होगा, बल्कि कैडावेरिक पोजीशन में रहेगा। अगर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व डैमेज हो गई तो क्या होगा, सॉरी, अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हुई तो फिर क्या होगा, सारे मसल चले जाएंगे, सिर्फ क्रिकोथायरॉइड बच जाएगा। क्रिकोथायरॉइड एडक्टर है तो वोकल कॉर्ड एडक्टेड रहेगा, पैरामीडियन पोजीशन में रहेगा। सही समझ आ गया? और फ़र्ज़ करें अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से या सुपीरियर लेरेंजियल नर्व डैमेज हो जाती है तो क्या होगा, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व का क्या काम होता है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है क्रिकोथायरॉइड मसल को, क्रिकोथायरॉइड मसल एडक्टर है, एडक्टर, वो एडक्टर इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। सुपीरियर नर्व, देखो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी जब, तो क्रिकोथायरॉइड काम नहीं करेगा, क्रिकोथायरॉइड काम नहीं करेगा तो एडक्टर इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और आपका जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पे आ जाएगा, बहुत हाइपर एबडक्टेड हो जाएगा, सही है, फुली एबडक्टेड हो जाएगा। जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व गई तो वोकल कॉर्ड ये आ गया, सही है, यहाँ पे, और जब सुपीरियर लेरेंजियल नर्व गई तो वोकल कॉर्ड ये आ गया। जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व गई तो सारे मसल ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, सिर्फ बचा क्रिकोथायरॉइड मसल। क्रिकोथायरॉइड का एडक्टर रोल होता है और वोकल कॉर्ड को अंदर एडक्ट करके रखेगा, पैरालिसिस के बाद यहाँ रहेगा वोकल कॉर्ड, सही है। और अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सही है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व ख़राब हो गई तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व के जाने से क्या होगा, क्रिकोथायरॉइड मसल जाएगा तो एडक्टर इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, वो फुली एबडक्टेड रहेगा मसल, यहाँ पे वोकल कॉर्ड रहेगा। लेकिन अगर दोनों नर्व्स डैमेज हैं तो ना वो एडक्टेड रहेगा ना वो हाइपर एबडक्टेड रहेगा, वो कैडावेरिक पोजीशन में रहेगा, ठीक है। दिस इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द वेगनर-ग्रासमैन थ्योरी, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। एक है सीमेंस लॉ। अकॉर्डिंग टू सीमेंस लॉ, फॉर एनी लेजन अफेक्टिंग द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, the fibers that are supplying the abductors are more susceptible to injury, right? समझ आई बात? अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होती है ना तो हमने क्या कहा, देखो ये बात आपको मैंने उस दूसरी थ्योरी से भी समझाई कि जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होती है तो मसल जो होता है, वो मसल बोल रहा हूँ बार बार, वोकल कॉर्ड जो होता है वो पैरामीडियन पोजीशन में रहता है, एडक्टेड पोजीशन में रहता है, वो एबडक्ट नहीं हो पाता। इसी बात को सीमेंस लॉ ने अपने अल्फाज में समझाया है। देखो
अकॉर्डिंग टू सीमेंस लॉ, जब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी होती है तो एबडक्टर फाइबर्स ज़्यादा डैमेज होते हैं, पहले डैमेज होते हैं बजाय एडक्टर फाइबर्स के। इस वजह से जब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होगी तो वोकल कॉर्ड एबडक्टेड रहेगा, एडक्टेड रहेगा, एडक्टेड रहेगा। दोबारा बोलो, अकॉर्डिंग टू सीमेंस लॉ, जब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी होती है तो एबडक्टर फाइबर्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। जब एबडक्टर फाइबर ज़्यादा अफेक्ट होंगे तो वोकल कॉर्ड एबडक्ट नहीं होगा बल्कि वो एडक्टेड रहेगा। समझ आई बात? दोनों थ्योरीज ने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से। राइट बेटा, या एंड the fiber supplying the abductor muscles are involved much earlier than the adductor muscles. Thus the position of the vocal cord depends upon the duration and the duration of the lesion. तो अगर इस बात को हम सिंपल रखें तो दो थ्योरीज हैं बेटा, एक है सीमेंस लॉ, एक है वेगनर ग्रासमैन थ्योरी। वेगनर ग्रासमैन थ्योरी कहती है कि रिकैप के लिए, वेगनर ग्रासमैन थ्योरी कहती है कि अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होगी तो सारे मसल ख़राब हो जाएंगे, सिर्फ क्रिकोथायरॉयड मसल बच जाएगा। और क्रिकोथायरॉयड का एडक्टर इफेक्ट होता है, तो जो वोकल कॉर्ड है यहाँ रहेगा, पैरामीडियन पोजीशन में एडक्टेड रहेगा। ठीक है, और सुपीरियर लेरिंजियल नर्व डैमेज हुई तो एडक्टर इफेक्ट खत्म हो जाएगा क्रिकोथायरॉयड के ख़त्म होने की वजह से, और जो वोकल कॉर्ड है वो फुली एक्सटेंडेड, फुली एबडक्टेड रहेगा। और अगर सुपीरियर लेरिंजियल और आपके रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दोनों ही डैमेज हैं तो कैडावरिक पोजीशन में रहेगा। सही है। सीमेंस लॉ के मुताबिक जब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होती है तो पहले कौन अफेक्ट होता है? एबडक्टर फाइबर्स होते हैं। तो इसीलिए जब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होती है तो एबडक्टर फाइबर अफेक्ट हो जाते हैं, तो वोकल कॉर्ड एबडक्ट नहीं हो पाता बल्कि वो एडक्टेड रहता है पैरामीडियन पोजीशन में। दिस इज़ द मैक्सिमम बेटा। आई होप एंड आई बिलीव यू पीपल हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। अब ज़रा इसको डैमेज करते हैं फिर नर्व को, और फिर देखते जाते हैं क्या इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले यूनिलेटरल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व पैरालिसिस, यानी कि राइट साइड से भी आपकी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आती है, लेफ़्ट साइड से भी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आती है, राइट साइड से भी सुपीरियर लेरिंजियल नर्व आती है, लेफ़्ट साइड से भी सुपीरियर लेरिंजियल नर्व आती है। ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। सही है। हमने क्या किया? यूनिलेटरल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को डैमेज किया तो क्या होगा? खुद सोचो क्या होगा। If you damage the unilateral एक साइड के recurrent laryngeal nerve, so what's going to happen? recurrent laryngeal nerve जब डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? वोकल कॉर्ड की पोजीशन क्या होगी? वो एडक्टेड होगा, पैरामीडियन पोजीशन में होगा, क्योंकि जब ये नर्व उड़ाओगे तो क्रिकोथायरॉयड जो है बच जाएगा, उसका एडक्टेड इफेक्ट होता है, मसल टेंस रहेगा, एडक्टेड रहेगा। अब रीड करो इसको ज़रा। इन दिस टाइप ऑफ पैरालिसिस abduction of the vocal cord is not possible and cord lies in the paramedian or median position, right? Now what are the causes of the unilateral damage to the recurrent laryngeal nerve? Bronchogenic carcinoma is the most common cause, right? Baki thyroid surgery is another important cause which can affect the recurrent laryngeal nerve on this side, right beta? Okay. Yeah, what will be the effects produced if there is पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड ऑन वन साइड? दो वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है। इस तरफ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी बिल्कुल ठीक है, इस तरफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व भी बिल्कुल ठीक है। इस तरफ से सुपीरियर लेरिंजियल नर्व बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को हमने डैमेज करवा दिया है। आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? फिर पोजीशन तो पता चल गई, प्रॉब्लम क्या होगी? पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा? बहुत कम वॉइस में चेंजेस आएंगे, क्योंकि दूसरा कॉर्ड जो है ना बिल्कुल वो सही काम कर रहा है, ठीक है, राइट? बिकॉज द अदर कॉर्ड विल कम इन कांटेक्ट विद द पैरालाइज कॉर्ड। हाँ, ये कॉर्ड ज़रूर पैरालाइज हो गया है और पैरामीडियन पोजीशन में आ गया, लेकिन ये तो काम कर रहा है ना, ये खुद को अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जब कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं ना तो ये भी करीब आता है, ये भी करीब आता है। सही है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अब एक ये वाला जो है ना थंब पैरालिसिस, ये वाला साइड जो है वोकल कॉर्ड की पैरालाइज हो गई और ये वाला वोकल कॉर्ड बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला वोकल कॉर्ड का पता चल गया कि ये वाला वोकल कॉर्ड तो काम कर नहीं सकता, बेचारा पैरालाइज हो गया है। तो ये वाला वोकल कॉर्ड क्या करेगा? अपने आप अपने अंदर अडाप्टिव चेंजेस लेकर आएगा। पहले ये इतना करीब आता था, अब ये पूरा करीब आने की कोशिश करेगा। तो ये अडाप्टिव चेंजेस होंगे, ठीक है, ताकि आवाज़ में ज़्यादा चेंजेस ना आए और वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते रहें। तो चेंजेस ऑफ वॉइस विल बी मिनिमम बिकॉज द अदर कॉर्ड विल अडॉप्ट एंड विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द पैरालाइज्ड कॉर्ड।
एंड देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, क्योंकि बिल्कुल ये जो दो कॉर्ड हैं इनमें से एक कॉर्ड पैरालाइज हो गया है, पैरामीडियन पोजीशन में फंस गया है, लेकिन ये तो खुला हुआ है ना। हाँ, अगर दोनों कॉर्ड पैरालाइज हो जाते, दोनों तरफ से यूनिलेटरल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती, तो ये कॉर्ड भी अंदर की तरफ आ जाता, एडक्टेड हो जाता। इस तरफ अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होती तो ये भी मीडियन पोजीशन में आ जाता, एडक्टेड पोजीशन में, फिर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ ये पैरामीडियन पोजीशन में आया है, एडक्ट हुआ है, लेकिन ये तो एडक्ट नहीं हुआ ना, ये नॉर्मल है, तो बीच में रास्ता है एयर के पास होने का, तो there will be no difficulty in respiration, right? Because the other cord can abduct normally. And for this type of paralysis, आवाज़ से ये सांस में मसला नहीं है, तो no treatment is required, ठीक है। The voice and respiration are both near to normal, सिर्फ स्पीच थेरापी से काम चलाते हैं, बाकी सब ओके है, ठीक है बच्चों। ओके जी, चलें इसके बाद मैं बताता हूँ। राइट बेटा, सो bilateral recurrent laryngeal nerve paralysis. So on both the sides, obviously. So this is the side, this is one vocal cord, this is another vocal cord. यहाँ पे रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई कर रही थी, यहाँ पे रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई कर रही थी। अब हमने दोनों को जो है ख़त्म कर दिया, इंजर कर दिया, पैरालाइज कर दिया, ठीक है। तो मसला क्या होगा, दोनों साइड के वोकल कॉर्ड पैरामीडियन पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों एबडक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये अनकॉमन है, बोथ वोकल कॉर्ड्स पैरामीडियन पोजीशन में आ जाएंगे, और इससे क्या मसले मसाइल हो सकते हैं आप समझ ही सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन क्यों दोनों साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के डैमेज होने के रीजंस क्या है? थायरॉइडेक्टमी जो है, थायरॉइड ग्लैंड का रिमूवल जिसको कहते हैं, इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉज, जिसमें दोनों साइड के लेरिंजियल नर्व के डैमेज होने का चांस होता है, ठीक है। नतीजा क्या होगा, दोनों वोकल कॉर्ड करीब आ जाएंगे, बीच में बड़ी हल्की सी नैरो सी स्लिट रह जाएगी हवा के पास होने के लिए, ठीक है। या narrow slit is present between the vocal cord, and sometimes patient can breathe through it without stridor, but in most of the cases it is an emergency situation where breathing through a narrow slit is difficult and stridor is present. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस नैरो सी ओपनिंग से भी सांस ले पाते हैं, उनको स्ट्राइडर नहीं होता, but most of the times what happen, this narrow opening is very much narrower, and due to this obstruction, due to this narrower space, people come up with a stridor and respiratory difficulty, right? So yeah, even a slight exertion may produce the severe stridor and difficulty. जाहिर सी बात है बेटा, जब आप एक्सर्शन करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, कोई एक्सर्शन वाली एक्टिविटी करोगे, तो आपकी सांस का जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। You have to breathe in more, you have to breathe out more. So you think it is easy to breathe in and out more with this opening? I don't think it's possible. It's easy. So yeah, it's very difficult with this narrow slit to breathe in and breathe out very effectively. So exertion पे फौरी तौर पे डिस्निया होता है, स्ट्राइडर होता है। Voice quality is fairly good in these patients because the vocal cords are, no doubt they are in very close to each other, but still they work a little good, so they are fairly good. Voice quality is nice, but the problem is because the space is very much narrow, so there is a respiratory obstruction and dyspnea, ठीक है, खास करके एक्सर्शन पे। वोकल कॉर्ड तो करीब है, उल्टा एक दूसरे के साथ वो इजीली वाइब्रेट कर पाएंगे, ठीक है। मसला तो तब होगा आवाज़ के प्रोडक्शन में जब ये दोनों बहुत दूर चले जाएंगे, जब हम सुपीरियर लेरिंजियल नर्व को डैमेज करेंगे। जब दोनों दूर चले जाएंगे तो फिर वो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के करीब आके वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज़ अ नैरो स्लिट लेफ्ट, प्रॉब्लम विद द रेस्पिरेशन, व्हाट शुड वी डू? पेशेंट नीड ट्रेकियोस्टमी एमरजेंसी के अंदर, ठीक है। ट्रेकियोस्टमी विद स्पीकिंग वेल मे बी नीडेड परमानेंटली फॉर द होल लाइफ, yeah. So yeah, this is the thing, but how to get rid of this? Anything that can take you out of this problem? Surgical procedure like endoscopic laser chordectomy, laser arytenoidectomy, thyroplasty type 2 and other lateralization procedures, जिससे हम इन vocal cords को अपनी नॉर्मल जगह पे लेके आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद comes another thing, that is the unilateral. अब हमने क्या किया, ये अगर वोकल कॉर्ड था तो इस तरफ की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को उड़ा दिया, इस तरफ की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को उड़ा दिया, और दोनों को हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम होती है। नाउ वी विल सी यूनिलेटरल कंबाइंड पैरालिसिस ऑफ द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। अब एक काम करते हैं,
एक साइड के दोनों नर्व्स को उड़ा के देखते हैं, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व को भी और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को भी, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला वोकल कॉर्ड तो बिल्कुल ठीक रहेगा, इस तरफ की दोनों नर्व्स उड़ गई हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैंने क्या बताया था, जब दोनों नर्व डैमेज होती हैं तो फिर वो कैडावेरिक पोजीशन में आ जाता है आपका वोकल कॉर्ड, ठीक है। सो अगर ये आपका नॉर्मल वोकल कॉर्ड है इस साइड वाला, क्योंकि इस साइड नर्व इंजरी नहीं हुई, इस साइड नर्व इंजरी हुई, तो वोकल कॉर्ड आपका यहाँ पे होने के बजाय वो कैडावेरिक पोजीशन में चला जाएगा कुछ यूँ, ठीक है जी, इस तरीके से। सो या इन दिस टाइप adduction of the vocal cord is not possible because of the damage to the superior laryngeal nerve and the cricothyroid muscle is not working, so adduction is not possible, there will be the abduction, ठीक है। abducted cadaveric position में vocal cord मिलेगा। क्या वजह हो सकती है बेटा, बायलेटरल यूनिलेटरल दोनों नर्व की इंजरी की, थायराइड सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, दे टू आर द कॉमन कॉजेज। या now you know the position of the vocal cord in this condition and the causes behind it. Now what will be the consequences? During phonation, approximation of the chords do not occur and the air leaks through the glottis and you have problem in speaking. अब ये इतना दूर चला गया है वोकल कॉर्ड कि ये वाला जो वोकल कॉर्ड है, हाँ जी, तो इसके साथ अप्रॉक्सीमेट नहीं हो पा रहा। जब आप बोलने की कोशिश करोगे ड्यूरिंग फोनेशन, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द कॉर्ड्स नहीं होगी, बीच में से एयर लीक कर जाएगी थ्रू द ग्लॉटिस, ठीक है। सेकेंडली, एस्पायरेशन ऑफ द लिक्विड में अकर ड्यूरिंग स्वॉलिंग, जब आप स्वॉलो करते हो, जब आप डिग्लूटेट करते हो, खाना निगलते हो, तो दोनों वोकल कॉर्ड आपस में करीब आते हैं और बंद हो जाते हैं। अगर गलती से फूड लेरिंग्स में आ भी जाए तो वोकल कॉर्ड्स क्लोज्ड हो और फूड नीचे ट्रेकिया में ना जाए। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, ये है नॉर्मल वोकल कॉर्ड, ठीक है, और ये रहा आपका पैरालाइज वोकल कॉर्ड। अब अगर ये अप्रॉक्सीमेट हो भी जाए, ये तो नहीं होगा ना, बीच में स्पेस खुली रह जाएगी क्योंकि ये पैरालाइज है। नॉर्मली यूँ मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के करीब आते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक, जब और फूड जो है यहाँ से नीचे नहीं जा पाता ट्रेकिया में। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि ये तो वर्किंग है लेकिन ये काम नहीं कर रहा, ये कैडावेरिक पोजीशन में चला गया है बहुत दूर। अब ये तो अप्रॉक्सीमेट हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। ड्यूरिंग फोनेशन अप्रॉक्सीमेशन कॉर्ड्स की नहीं होगी और आवाज़ में मसला होगा। और दूसरा, सेकेंडरी एस्पायरेशन ऑफ द लिक्विड एंड द फ्लूइड में अकर ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग, ठीक है। पेशेंट को कंप्लीट एफोनिया होगी, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलेगी। रेस्पायरेशन में कोई मसला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उल्टा स्पेस खुल गई है, एयर के इनफ्लो आउटफ्लो में उल्टा सहूलत हो गई है, तो रेस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी एज देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन। आफ्टर सम टाइम अपोजिट कॉर्ड क्रॉसेस द मिड लाइन एंड द फोनेशन क्रॉसेस द मिड लाइन ऑन फोनेशन इज अ कंपनसेटरी इफेक्ट एंड द वॉइस बिगिन टू रिटर्न टू द नॉर्मल। इससे ज़्यादा कोई अच्छी खबर हो सकती है, मैं समझाता हूँ। लोग बेटा, these are the two normal vocal cords, they can vibrate and they both can come to each other and they can approximate, they can vibrate and the sound is produced. But now the problem is this vocal cord is paralyzed and this is in the cadaveric position, this is in the normal position, ठीक है, this is working. प्रॉब्लम क्या थी, ये तो अप्रॉक्सीमेट कर रहा था, वो वाला नहीं कर रहा था, तो बीच में स्पेस थी, फ्लूइड जो है एस्पायरेट हो सकता था, ऐसा ही था। और दूसरा, क्योंकि ये दोनों आपस में अप्रॉक्सीमेट होके वाइब्रेट नहीं हो रहे तो फोनेशन एफोनिया हो गई थी बिल्कुल, ठीक है, पेशेंट की आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन वक्त के साथ क्या होता है कि ये जो वोकल कॉर्ड है ना, ये सेंटर पे आ जाता है और कंपनसेटरी इफेक्ट अपने अंदर डेवलप कर लेता है और ये इतना आगे आके वाइब्रेट करता है कि आवाज़ निकलती है, फिर वो वॉइस भी सही हो जाती है वक्त के साथ, ठीक है। इसके इसमें रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन तो वैसे ही नहीं होती, ठीक है बच्चों। द क्वालिटी ऑफ द वॉइस एट दिस स्टेज इज़ लिटिल हार्श एंड हॉर्स एंड द नॉर्मल वॉइस विल रिटर्न स्पॉन्टेनियसली विद सम टाइम, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और फिर वॉइस को आराम आराम से इम्प्रूव करने के लिए स्पीच थेरापी करते हैं और या एंड ब्रिंगिंग द वोकल कॉर्ड्स, पैरालाइज वोकल कॉर्ड्स इन द मिड लाइन स्पीच थेरापी करके, राइट बेटा, ओके। स्पीच थेरापी की मदद से आप अपनी आवाज़ के अंदर हॉर्सनेस को ख़त्म कर सकते हो, आवाज़ की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो। लेकिन जो पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड है उसको कैडावेरिक पोजीशन से उठा के नॉर्मल पोजीशन पे तो नहीं ला सकते ना, उसके लिए फिर आपको सर्जरी करनी पड़ती है, टेफ्लॉन इंजेक्शन पेस्ट डालना पड़ता है और द एजेस, ताकि जो वोकल कॉर्ड के एजेस हैं वो मिड लाइन के करीब आएँ और वो दूसरे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट हो सके। कहने का मकसद ये है कि दो वोकल कॉर्ड है बेटा, एक नॉर्मल पोजीशन पे है, एक बहुत कैडावेरिक पोजीशन पे चला गया है, दूर चला गया है, ठीक है।
सही है जी। लेकिन बाद में ये कंपनसेटरी इफेक्ट डेवलप कर लेता है और ये इसके पास आके इसके साथ वाइब्रेट करता है तो आवाज़ निकलती है, हल्की टेढ़ी मेढ़ी से, लेकिन आवाज़ निकलती है। स्पीच थेरापी करते हो, क्वालिटी बिल्ड करते हो वॉइस की आप, और उसके अलावा आखिरी तरीका ये है कि आप जो है ना सर्जिकली इंजेक्टिंग टेफ्लॉन पेस्ट यूज़ करते हो, जिससे इसकी जो एजेस है ना वो आप मिड लाइन के करीब लेके आते हो ताकि ये ईजिली इसके साथ अप्रॉक्सीमेट हो सके और आवाज़ जो है अच्छे से निकल पाए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और कुछ जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि थायरोप्लास्टी टाइप 1 हो गया, और पोस्टीरियर थायरोप्लास्टी, एरिटनोइडोप्लास्टी वगैरह, ये सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो करके हम इसको मिड लाइन में लेके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलें इसके बाद कुछ और कंडीशंस डिस्कस करते हैं। राइट बेटा, नाउ कम्स द बायलेटरल combined paralysis of both the nerves, the superior laryngeal nerve and the recurrent laryngeal nerve. अब दोनों तरफ से दोनों नर्व्स काम नहीं कर रही, तो दोनों तरफ क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ सोचें। ना फुली एबडक्टेड ना फुली एडक्टेड वोकल कॉर्ड्स होंगे, बल्कि दोनों तरफ से वोकल कॉर्ड कहाँ होंगे, cadaveric position में। Both the vocal cords are present in the cadaveric position and with the total anesthesia of the larynx, क्योंकि ज़ाहिर है सारा नर्व सप्लाई कट हो गया तो टोटल एनेस्थीसिया हो जाएगा larynx का। It's a much less common condition and the cause of such paralysis is the more neurological myopathic disorders। और ज़ाहिर सी बात है बेटा, दोनों तरफ के देखो ना, ये नॉर्मल वोकल कॉर्ड है कुछ इस तरीके से, एक कैडावरिक पोजीशन में होता है एक नॉर्मल में होता है ना, तो ये कंपनसेट करके यहाँ आ जाता है। लेकिन अब दोनों कैडावरिक पोजीशन में है तो फिर इसमें कंप्लीट एफोनिया होगा और वॉइस वक्त के साथ रिकवर नहीं करेगा क्योंकि दोनों बहुत दूर चले गए हैं। ठीक है, एक होता है ना तो दूसरा कंपनसेट कर जाता है, लेकिन बोथ आर इन द कैडावरिक पोजीशन, सो वॉइस विल नॉट रिकवर विद टाइम। एंड इस केस में रिस्पायरेशन तो अफेक्ट नहीं होगी, रिस्पायरेशन नॉर्मल रहेगी, लेकिन फूड इनहेल हो सकता है या जा सकता है। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर गलती से लेरिंग्स में आ गया तो या इस पेशेंट को ट्रेकियोस्टमी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? हालांकि रेस्पिरेशन तो बिल्कुल ठीक है, इतना खुला रास्ता है तो रेस्पिरेशन तो बड़ी आसानी से होती होगी, फिर ट्रेकियोस्टमी की ज़रूरत क्यों? क्योंकि ये ऐसे पेशेंट हैं जिनका वोकल कॉर्ड हर वक्त खुला रहता है, लेरिंग्स का रास्ता हर वक्त खुला रह सकता है, तो सिक्रेशंस यहाँ से जा सकते हैं, गलती से पानी चला गया या फिर कुछ और सिक्रेशंस। देखो ज़रूरी नहीं है फूड या वाटर ही जाए, जो ऊपर लेरिंग्स पे सिक्रेशंस बनती हैं, नॉर्मली वोकल कॉर्ड बंद होते हैं तो वो सिक्रेशंस नीचे नहीं जा पाती हैं, लेकिन अब तो वोकल कॉर्ड हर वक्त खुले हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो सिक्रेशंस नीचे चली जाती हैं। ठीक है, तो ट्रेकियोस्टमी करते हैं, मे बी नीडेड इन दिस टाइम टू क्लियर द सिक्रेशंस फ्रॉम द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। अगर नीचे जमा हो गई सिक्रेशंस या गलती से फूड चला गया तो फिर तो एब्सेस बन जाएगा लंग में, लंग कोलैप्स हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलें जी। वेरी रेयरली इन सीवियर केसेस टोटल लेरिंजेक्टमी करनी पड़ती है ताकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, देखो ना आपने दोनों वोकल कॉर्ड्स को कैडावेरिक पोजीशन में छोड़ दिया है, यहाँ से फूड अंदर जा सकता है, नीचे वाटर जा सकता है, सिक्रेशंस जा सकती हैं, तो इससे बेहतर नहीं है पूरा लेरिंग्स ही निकाल दो ताकि कम से कम लोअर एयरवे जो लंग्स हैं वो तो सेफ रहें। ठीक है बेटा, उसके बाद दो और कंडीशन है, वन इज़ द यूनिलेटरल, अभी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व खत्म, अब सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, एक साइड की सुपीरियर लेरिंजियल नर्व बायलेटरल सुपीरियर लेरिंजियल नर्व को डैमेज करेंगे। ठीक है, सुपर एबडक्टेड पोजीशन में चला जाएगा बेटा वोकल कॉर्ड, तो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व जो है सप्लाई करती है क्रिकोथायरॉइड मसल को, तो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व पैरालाइज हो जाएगी तो क्रिकोथायरॉइड मसल विद सुप्राग्लॉटिक एनेस्थीसिया होगी एक साइड की। एंड या वैसे एक तरफ का सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की डैमेज होना बड़ा अनकॉमन सा है और ऑफन अननोटिस्ड होता है। देयर विल बी द लॉस ऑफ द टेंशन इन द वोकल कॉर्ड एंड वॉइस विल बी वीक एंड लो पिच्ड, राइट, विथ नो प्रॉब्लम इन द एयरवे। एक साइड का तो वोकल कॉर्ड नॉर्मल होगा, जिस तरफ ये सुपीरियर लेरिंजियल नर्व डैमेज हुई है उस तरफ का वोकल कॉर्ड थोड़ा, क्योंकि क्रिकोफेरिंजियस मसल लॉस हो गया है ना, तो एडक्टेड नहीं रहेगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, दैट्स इट। सही है, और या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेशन तो बिल्कुल ठीक होगी, और क्रिकोथायरॉइड मसल का एक और मसल फंक्शन था कि इस वोकल कॉर्ड को टेंस करके रखता है, वोकल कॉर्ड का टेंशन भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, वॉइस बिल्कुल ठीक होगी, थोड़ी वीक होगी, उसकी पिच कम होगी क्योंकि वोकल कॉर्ड का टेंशन चला गया है और थोड़ा दूर हो गया है। इससे वो तो खैर ये अडाप्ट करके इसके साथ वाइब्रेट करेगा,
लेकिन आवाज़ प्रोड्यूस होगी, लेकिन लो पिच्ड और वीक होगी। उसकी वजह यह है कि ये बड़ा पहले टेंस मसल था, अब ये क्रिकोथायरॉयड मसल नहीं रहा, तो ये टेंशन इसका ख़त्म हो गया। इस वजह से जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी बड़ी लो पिच की आवाज़ होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, या बायलैटरल सुपीरियर लारिंजियल नर्व पैरालिसिस। Look, one thing that I have to correct here is what happens, beta, in case of the injury to the superior laryngeal nerve paralysis, the cricothyroid muscle is lost for sure, obviously. When the cricothyroid muscle is lost, the vocal cords के अंदर जो चीज़ लॉस हो जाती है वो है टेंशन। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये दो वोकल कॉर्ड्स हैं, इस तरफ के हमने सुपीरियर लारिंजियल नर्व डैमेज कर दी, तो इस वोकल कॉर्ड का टेंशन चला जाएगा क्योंकि क्रिकोथायरॉयड मसल चला गया। तो क्या ये वोकल कॉर्ड फुली एब्डक्टेड हो जाएगा? तो इसका नहीं कह सकते हम। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो मसल्स हैं जिनको रिकरेंट लारिंजियल नर्व सप्लाई कर रही थी वो मसल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, वो मसल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, तो वो आपके वोकल कॉर्ड को अंदर की तरफ रखेंगे। दोबारा रिपीट करते हैं बात को, एक वोकल कॉर्ड दूसरा वोकल कॉर्ड, इस तरफ की सुपीरियर लारिंजियल नर्व डैमेज हो गई, तो इस वोकल कॉर्ड का टेंशन तो बिल्कुल लॉस हो जाएगा, ये वोकल कॉर्ड बिल्कुल लैक्स हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। एक चीज़ जो अभी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, जो शायद आई हैव मेड द मिस्टेक प्रीवियसली, मैंने कहा था सुपीरियर लारिंजियल नर्व डैमेज होगी तो ये मसल, ये वोकल कॉर्ड बहुत फुली एब्डक्टेड पोजीशन में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर लारिंजियल नर्व के डैमेज होने से क्रिकोथायरॉयड मसल जाता है। क्रिकोथायरॉयड मसल के जाने से नो डाउट क्रिकोथायरॉयड एक एडक्टर है, वोकल कॉर्ड को इधर जाना चाहिए, लेकिन रिकरेंट लारिंजियल नर्व बरकरार है, वो बहुत सारे मसल्स को सप्लाई करती है, उनमें से कुछ एडक्टर्स भी होते हैं जो इसको यहाँ अंदर की तरफ खींच के रखते हैं। लेकिन उस कैटेगरी में जिसको रिकरेंट लारिंजियल नर्व सप्लाई करती है, उस कैटेगरी में टेंसर्स नहीं आते जो मसल को टेंस करके रखते हैं, वोकल कॉर्ड को टेंस करके रखते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, ये नॉर्मल वोकल कॉर्ड्स हैं, इस तरफ की सुपीरियर लारिंजियल नर्व डैमेज हो गई। आप क्या सोच रहे थे अभी तक कि क्योंकि सुपीरियर लारिंजियल नर्व चली गई तो ठीक है, क्रिकोथायरॉयड मसल गया, क्रिकोथायरॉयड मसल गया तो इसकी टेंशन भी ख़त्म हो गई और ये शायद ये जो है फुली एब्डक्टेड हो जाए, क्योंकि क्रिकोथायरॉयड गया तो एडक्शन लॉस हो गई, अब ये फुली एब्डक्टेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये दिस इज़ द मिस्टेक आई हैव मेड प्रीवियसली, बट आई हैव टू करेक्ट इट नाउ। When there is damage to the superior laryngeal nerve, no doubt the tension of this vocal cord will be lost, but there will not be like full abduction. Full abduction नहीं होगी, ये जो vocal cord है फिर भी यहीं पर रहेगा। आप कहेंगे सर क्रिकोथायरॉयड मसल डैमेज हो गया तो इसको फिर अभी एडक्ट करके कौन रख रहा है? रिकरेंट लारिंजियल नर्व तो सही है ना बेटा। तो उस वो जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है उसमें कुछ एडक्टर्स भी हैं, तो वो इसको एडक्ट करके रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। सो या दिस इज़ द थिंग विच हैपन्स। तो इसी वजह से जब दोनों तरफ की सुपीरियर लारिंजियल नर्व पैरालिसिस होती है, बायलैटरल सुपीरियर लारिंजियल नर्व पैरालिसिस होती है, तो क्या होता है, दोनों तरफ की जो टेंशन है वो लॉस हो जाता है वोकल कॉर्ड का, और उनकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों तरफ के वोकल कॉर्ड अभी फ्लेक्सिबल हैं, उनमें किसी किस्म का टेंशन नहीं है, तो जो वॉइस बनती है वो वीक होती है। और या अलॉन्ग विथ द इनहेलेशन ऑफ द फूड और द सिक्रेशन इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आप सोचेंगे ये तो अपनी पोजीशन में है, ऑलमोस्ट नो डाउट विद द डैमेज टू द सुपीरियर लारिंजियल नर्व इनका टेंशन चला जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फुली एब्डक्टेड हो जाएंगे, या दे गेट अ लिटिल अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, लेकिन फुली एब्डक्ट नहीं होते। ठीक है, तो स्पेस बन जाती है बीच में और फूड के और दूसरी चीज़ों के नीचे जाने का खदशा होता है। एंड वी परफॉर्म द ट्रेकियोस्टमी एंड द एपिग्लोटोपेक्सी इज़ नीडेड इन सम केसेस व्हेन देयर इज़ द मार्क्ड एस्पायरेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये है बच्चा। तो मैं अब थोड़ा सा अगर समराइज़ करूँ, मुझे कुछ 1 से आधा मिनट दें। एक्चुअली ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं बेटा, लेट सपोज। ठीक है, जब रिकरेंट लारिंजियल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, ये मिडलाइन है, फ़र्ज़ करें ये पैरामीडियन पोजीशन है, ये कैडावेरिक पोजीशन है, ये फुली एक्सटेंडेड पोजीशन। अगर रिकरेंट लारिंजियल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स
पैरामीडियन पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, यही बात हुई थी। जब रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होगी तो वोकल कॉर्ड्स इस पोजीशन में रहेंगे। अगर सुपीरियर लेरिंजियल नर्व डैमेज होती है तो क्या होगा, फुली एक्सटेंड नहीं होंगे, या वो बाहर ज़रूर आएंगे लेकिन फुली एक्सटेंड नहीं होंगे, और मसल के अंदर टेंशन खत्म होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, दोनों तरफ के वोकल कॉर्ड फ्लेक्स हो जाएंगे, इजीली साइड पे हो जाएंगे अगर कोई भी फुट पार्टिकल आता है तो। ठीक है, लेकिन अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सुपीरियर लेरिंजियल नर्व दोनों डैमेज होती हैं तो फिर वोकल कॉर्ड की क्या पोजीशन होगी, ये कैडावेरिक पोजीशन होगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। सो आई होप आई हैव नॉट मेड इट complicated and I am not trying to actually complicate it anymore. I hope it is easy for you beta. So this is all about this lecture. If you have any question regarding this lecture, so you can ask me anytime, anywhere beta, right? You are free to ask. Thank you so much. Class dismissed.